Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Good morning, all the students. Today we will start our new chapter number 2, that is material. And in this chapter material, we will learn about solids, liquids, and gas. You have already learned and know about solids, liquids, and gas. So, before I start to explain you all three states of matter, that is solid, liquids, and gas, I want to tell you that what is material. Material is what an object or thing is made of. I repeat, material is what an object or thing is made of. For example, now this is a picture of a room. You can see a lot of things in this room. For example, cupboard, bed, table, bookshelf, mat, curtains, windows, books, clothes, bags, and etc. Do you know why I am telling you all these things? The reason is that if you see the furniture, that is table, bed, cupboard, all these things are made of wood. If you think all types of clothes like pajamas, shirts, curtains, bed sheets, pillow covers, all these material and clothes are made of fiber. If we talk about toys, toys are made of plastic. So all the things are made of any kind of material. So material is what an object or thing is made of. Right? समझ आया? जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, all the non-living things, these all things are made of any kind of material. ये किसी न किसी मटीरियल से मिलके बनी है. ठीक है, और इसको हम मटीरियल कहते हैं. Right. Now this is the list of some materials like stone, wool, leather, rubber, plastic, fabric, wood, metal, etc. Okay, this is a pencil. Indeed, you are thinking that why I am showing you this pencil. The reason is that I want to know that how many materials are used in the making of this pencil. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल रबर. बिल्कुल इसकी टॉप देखें पेंसिल की टॉप पे रबर है एंड रबर इज़ अ मटीरियल. मेटल. बिल्कुल रबर के नीचे एक सिल्वर कलर का आपके हाथ में भी पेंसिल होगी और आपने देखा होगा कि रबर के नीचे एक मेटल का एक रिंग बना होता है. दैट इज़ मेटल. मेटल इज़ अ मटीरियल. वुड. वुड, ये जो पूरी आपकी पेंसिल होती है वो इस वुड से बनी होती है. राइट. और इसके बाद आप जिससे लिखते हैं ब्लैक कलर की जो निब होती है आपकी पॉइंटेड, दैट इज़ मेड ऑफ ग्रेफाइट. ओके, सो this is done and this is clear that all the materials are made of atoms, and according to the atoms all the things are divided into 3 groups. And what are the groups? Solid, liquid, and gas. Right? Now these are the states of solid, liquids, and gas. Solid is always hard, liquid is flowy, and gas, we can't see it. Right? Oh, atom. Indeed a new word for you. Do you know what is atom? Indeed, आप में से कुछ लोगों ने इस एटम के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा. ठीक है. एवरी नॉन लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम. जितनी भी इस पूरी वर्ल्ड में चीज़ें हैं वो सब की सब जो हैं वो एटम से मिलके बनी हैं. Atom is the smallest particle of matter and is round in shape. Atom इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है और ये शेप में राउंड होता है.
मीन्स कोई भी चीज़ इस पूरी वर्ल्ड में, कोई भी चीज़, हर चीज़ इस एटम से मिलके बनी हुई होती है। और ये एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है दैट वी कांट सी इट विथ आवर नेकेड आइज़। हम अपनी सिर्फ आँख से इसको नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है, यानी कि हम इसको इतनी आसानी के साथ खाली अपनी आइज़ के साथ नहीं देख सकते। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन एटम। आई वॉन्ट टू शो यू इन अ क्लोजर व्यू। सी दिस एटम, ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में ऑरेंज कलर का राउंड शेप में नज़र आ रहा है, दिस इज़ एटम, राइट। एटम के बगैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं बन सकती। मीन्स अगर आप पेंसिल देखें, आपकी पेंसिल की जो टॉप पे एक रबर है, ठीक है, आप इस रबर को देखें तो सिर्फ आपका ये एक रबर जो है ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एटम से मिलके बना हुआ है। इतने सारे इसमें एटम्स मौजूद हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना टाइनी होता है, कितना छोटा होता है, राइट। देन इज़ मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? Molecules are group of atoms when they bound together. जब atoms बाउंड हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ आपने देखा है कि डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी इस पूरी यूनिवर्स में, ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हैं। यानी कि एटम्स, डिफरेंट एटम्स आपस में जॉइन हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं और फिर वो मिलके एक नई चीज़ बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो एग्ज़ाम्पल है वाटर, पानी, ठीक है। आप पानी को देख लें, पानी का जो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। मींस दो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो जब आपस में जॉइन होते हैं तो मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अभी हम वाटर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं उस वाटर का जिक्र करूँगी, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जितनी भी सॉलिड्स होती हैं, जैसे कि आपकी सॉलिड में आपकी कॉपी है, आपका पेन है, आपका बैग है, आपके शूज़ हैं, ऑल दीज आर सॉलिड्स। बट इन इन हर सॉलिड चीज़ के एटम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एटम्स जो हैं वो आपस में जॉइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हैं अब जितनी भी बात करेंगे अपनी सॉलिड, लिक्विड एंड स्टेट की, वो हम मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, राइट। ओके, नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप गौर से देखिए, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लू कलर के सारे एटम्स हैं और जब ये एटम्स सारे आपस में जॉइन हो रहे हैं और ये सब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। ओके, नाउ कम्स ऑन सॉलिड स्टेट। व्हाट इज सॉलिड? सी दिस, ऑल दीज आर सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अगर आप इनको गौर से देखें, व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है? ये कैसे हैं देखने में? सबसे पहले आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा, आप कहेंगे कि ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड विथ ईच अदर, क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, यानी कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो सब आपस में बहुत करीब करीब बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बाउंड हैं। देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, राइट। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में इन बिटवीन, इनके बीच में स्पेस नहीं होती है, राइट। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नाउ दिस इज अ सॉलिड। अच्छा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं एंड देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम, और इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। नंबर 2, solids have definite shape.
सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, यही वजह है कि आप सॉलिड के ऊपर, यानी कि आपकी कॉपी एक सॉलिड है, आप इस कॉपी के ऊपर अगर मैं पेन रखूं तो क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होती है, इसलिए अगर मैं कॉपी पे पेन रखूंगी तो वो कॉपी की सरफेस के ऊपर रहेगा, वो उसके अंदर सिंक नहीं होगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में स्पेस नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जब स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली सॉलिड हार्ड होगा, उसकी एक डेफिनेट शेप होगी। ठीक है, जब सॉलिड मॉलिक्यूल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड चीज़ें जो होती हैं दे हैव डेफिनेट शेप, इनके बीच में स्पेस नहीं होती है, राइट। एंड सॉलिड्स कैन बी केप्ट विदाउट कंटेनर, और सॉलिड्स को हम किसी भी कंटेनर या बर्तन के बगैर रख सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँ कि मैं अपने हाथ में पेन को पकड़ लूँ, मैं पकड़ सकती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं पेन को किसी रैपर में करूँ या किसी बर्तन में या प्लेट में रख के अपने हाथ में रखूँ, क्योंकि पेन इज़ अ सॉलिड, और जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी अपनी एक शेप होती है, राइट। जितनी भी सॉलिड चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आएंगी, ठीक है, उनको आपको रखने के लिए आप अपनी किसी भी सॉलिड चीज़ को कहीं पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपके हाथ में कॉपी, पेंसिल, बुक, शूज़, बैग, टॉयज़, क्लोथ्स, आप इनको कहीं भी रख सकते हैं। आपको ये डर नहीं होगा कि ये बह जाएंगे और आपको इसे किसी चीज़ के अंदर रखने की ज़रूरत है, राइट। ओके, नाउ दीज आर ऑल सॉलिड थिंग्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड थिंग्स। इन सब की एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, और हमें इनको रखने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। Now come on liquid molecules. Now see the liquid molecules. अब आप डिफरेंस फील करें। मैंने अभी आपको जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स दिखाए थे वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली और टाइटली पैक थे। सॉलिड मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं थी, लेकिन ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और आप गौर से देखिए कि इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में बीच में स्पेस है, right? So what are the properties of liquid molecules? Liquid atoms or molecules have space between them. इनके बीच में space होती है. Liquids do not have definite shape, means they can take the shape of the container. क्योंकि liquids के atoms में, molecules में बीच में space होती है, इसीलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मीन्स वो इजीली जहाँ आप उनको रखेंगे लिक्विड्स को, वो इजीली उनके बीच में स्पेस होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। उनको जिस चीज़ में रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं। मीन्स दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, सो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर कहते हैं किसी बर्तन को या जिस चीज़ में उनको रखा जाए। लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऑलवेज रिमेंबर, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो हमेशा फ्लो करते हैं, बहते हैं, राइट। लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल to lower level, right? Liquids need to be kept in container. आप किसी भी लिक्विड चीज़ की एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जूस, टी, वाटर, आप लोग रमज़ान में शरबत पीते हैं। जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं आपको उनको पीने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, किसी पॉट की, किसी बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है। आप इस तरीके से उनको हाथ में नहीं उठा सकते, ठीक है, क्योंकि वो फ़्लो हो जाते हैं, और वो फ़्लो होते हैं इसलिए वो लिक्विड होते हैं, फ़्लो होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है। उनको जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। अगर मैं पानी को ग्लास में रखूं तो वो ग्लास की शेप ले लेगा,
अगर मैं पानी को मग में रखूं तो वो मग की शेप ले लेगा, राइट? सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने आपको सॉलिड्स और लिक्विड स्टेट्स बताई हैं और उनको मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करना बताया है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आज का हम टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और ओके, नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स, ठीक है? रीडिंग हम करेंगे, ओके? और हम रीडिंग करेंगे अपने जूम की क्लास में, ठीक है? ये बुक पेज नंबर्स हैं जो कि हम रीड करेंगे, पेज नंबर 24, ठीक है?